Hello YouTube, and today we are heading to do a comparison between this Calipari, the V-Storm 250SX and the BMW G310 GS. So seat height, service cost, running cost, average, the ride comfort, the suspension. We're trying to cover all the things in one video. So now we are heading towards the bike. मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले दोनों बाइक साइड बाय साइड दिखाता हूँ एंड देन वी बिगिन विद द कंपैरिजन. Okay, so this is how the bike compares when they kept side by side. That's the G310 GS. This is the V-Storm. And clearly, वो बहुत huge है. अगर आप side profile भी देखो, उसका tank compared to this बहुत huge है. Giving you the front view, this is what they look like. Okay, this is big. 310cc, 34 PS power, 835 seat height है. And so, normal suspensions, you get USDs, gold anodized. This is the BMW headlamp, the LED, the DRL. यहाँ पे DRL नहीं है, यहाँ पे you have the always on headlights, indicators, LEDs. But ये उनके premium indicators है. Okay, you have the mirrors. And if I go back, these are the tires. So profile, slightly wide. These are the seats. You can see the width, pretty decent. ये थोड़ी सी ज़्यादा wide है. इसकी cushioning, oh, this feels premium. This is also decent. ये low seat height है. And this is the grab rail that you get, which is also your plate. यहाँ पे आप अपना top box mount करोगे. This is the POV that you get. Tank is huge. These guards are not the standard accessories. ये aftermarket है from the BMW and they cost around 50,000 if I'm not wrong. इसके 5,000. But this is what you're paying for. But यार this looks beautiful. सामने से अगर आप देखोगे, this looks like a big bike. ये जो GS का टैग है justify करती है GS टैग. So एक बार इसकी टेस्ट राइड लेते हैं. Let's see how this is. Okay, so stepping onto this. And this is 835. This feels good. Flat foot हो रहा है. I am 5'8", I can easily flat foot. This is the POV. ये थोड़ा outdated लगता है, but still I am liking the dash. बहुत minimalistic है. The BMW logo, handlebars pretty decent, adjustable levers, both brake and clutch, 6-speed gearbox. That's the brake. It feels good. Okay, suspension, oh my god, compared to this, the suspension of this is pretty soft. तो इसका फॉरवर्ड सस्पेंशन ट्रैवल बहुत अच्छा है. कमाल का सस्पेंशन ट्रैवल है. लुक एट दिस, सस्पेंशन ट्रैवल इज प्रिटी गुड. ये सस्पेंशन ट्रैवल मिल रहा है, प्रिटी सॉफ्ट. ओके, लेट्स हिट द डैश. सो बहुत बेसिक कंसोल है. यू गेट द गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गॉज. एंड चलो, लेट्स स्टार्ट. So this is what it sounds like. What the bike sounds like. And एक राइड लेके आते हैं. चलो चलो, off we go. So बहुत लीनियर एक्सेलरेशन है. पावर इनिशियली मालूम नहीं पड़ता है. While from the V-Storm, power initially पता लग जाता है, probably because it's way lighter than this. Gears थोड़े से hard है, but boy oh boy, the suspension is beautiful on this. यहाँ पे the GS outshines V-Storm क्योंकि V-Storm का सेटअप है ना सस्पेंशन का, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है.
आपको हर खड्डा फील होता है, बट दिस बाइक इज़ जस्ट ग्लाइडिंग ओवर पॉट होल्स एज इफ इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर इट। तो ये बहुत मज़ा आता है खड्डे में चलाने को। भाई ट्रस्ट मी, ऐसे अगर गाड़ी हो, ऐसा सस्पेंशन सेटअप हो, तो मुझे ये रोड नहीं चाहिए, फिर मैं इसको खड्डे में ही चलाऊंगा। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, द सस्पेंशन सेटअप ऑन दिस वन इज प्रिटी गुड, so this justifies the price that you're paying. It's easy to handle. तो इसका जो वेट है, जो कर्व वेट है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। On paper the GS is heavier by around 10 kgs, but on the road it feels lighter क्योंकि इसका weight management ज़्यादा बढ़िया है। Even the quality of the handle, the switch gear is beautiful। इसमें ride by wire मिलता है। Mirror is also way better than the V-Storm क्योंकि ज़्यादा wide है, आपको पीछे का view ज़्यादा बढ़िया मिलता है। First I was wondering why is this bike so expensive? So on the V-Storm you sit on the bike. Being an adventure, इसमें you're sitting in the bike. तो वो जो smooth seat है, that adds on to the back support, आपको back पे support मिल जाता है। Whilst on the V-Storm आपको जो सीट मिलती है वो स्प्लिट सीट मिलती है। इवन दैट इज़ कंफर्टेबल, बट ये जो स्कूप्ड सीट है ना, ये आपको बैक को ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बहुत लीनियर सीट है कि आपके एक्सेलरेशन का, द पावर इज नॉट इंटिमिडेटिंग, जरा भी डराता नहीं आपको पावर। ब्रेक्स आर डिसेंट एंड इट्स इजी फॉर मी टू टेक अ यू टर्न। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, मतलब ऑन द टर्न आई एम लाइकिंग इट मोर देन द V-Storm। इट्स गुड, द बाइक इज गुड। Power is 34 PS, which is very linear. All of a sudden आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये 34 PS है। So it is also a very good beginner bike for the same reason, and it's very easy to handle. Maneuvering is no big deal. जो क्लच है वो बहुत लाइट है। V-Storm का क्लच इज थोड़ा सा ऑन द हेवियर साइड, और इसका क्लच बहुत लाइट है, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन वी कैन बेयर। बस आपको फील होगा एट अराउंड 4000 RPM ऑन योर थाई ड्यू टू दिस, बट आई गेस अगर आप टैंक पैड लगा लोगे ना तो वो बस भी चले जाएगा। दी ओनली नेगेटिव आई फाउंड वुड बी विद स्लाइट हीट इन द इंजन, नॉट वेरी अनोइंग, बट या इट इज देयर। एंड द सेकंड नेगेटिव वुड बी slightly rough and hard gearbox, but I guess वो भी अगर आप शूज पहन रहे हो तो it shouldn't be a problem। और इसका रेडिएटर चालू हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, and this is what it looks like। That's the LED indicator। चलो let's head to the owner and see उनका कैसा experience है, how is this bike for him। Okay, now we have the owner of the bike with us. Hello sir। Hello। Thank you so much for giving me an opportunity to ride this। Thank you so much। So आपके क्या पॉजिटिव्स है ये बाइक के बारे में? फर्स्टली आप इसका कंफर्ट लेवल चेक करोगे, जो मोस्टली आजकल के इसमें थकान हो जाती है, सबको बैक इश्यू हो जाते हैं, इसमें वैसा कुछ सीन नहीं है। कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है इसका। लॉन्ग राइड जाओ, जिधर जाना है पिलियनर को बैठाओ पीछे, कुछ ऐसा है नहीं प्रॉब्लम। करेक्ट। तो सब मुझे बोलते हैं और स्मूथ बहुत है गाड़ी, बहुत स्मूथ है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो संडे राइड जाते हैं एंड विद अ पिलियन। Yes, yes। इवन तो आपको ये सीट थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बट दिस इज वेरी कंफर्टेबल लाइक आई टोल्ड यू ऑल। और ये स्टॉक है, ये स्टॉक सीट है, स्टॉक है। 835 सीट हाइट है, बट स्टिल आपको वो फील नहीं होता है कि ये दिस इज अ बिग बाइक है। ये एक्चुअली बड़ी बाइक है, बट इट फील्स वेरी गुड, यस वेरी गुड। और रोड प्रेजेंस इसकी बहुत अच्छी है। आप किधर भी लेके जाओ लोग तो देखेंगे। आप पहले बात तो 310 सीसी लगती नहीं है। एग्जैक्टली, ये कुछ 600 650 लगती है। और ये बल्कि स्टॉक है, अभी सिर्फ लेग गार्ड लगा है उन्हें। Correct। और बढ़ाऊंगा और बड़ी लगेगी। करेक्ट। सो द प्लान इज टू पुट ऑन अ टॉप बॉक्स। टॉप बॉक्स है, फिर बेसिक एसेसरी और जो एडवेंचर में चाहिए रहती है वो सब है। करेक्ट, लवली। एंड सो व्हाट आर द नेगेटिव्स? नेगेटिव्स में एक तो इसका गियर बहुत हार्ड है, ओके। जगह जगह पे जाओ हीट खा जाती है। और इसमें आप जितना भी आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगाओगे उतनी आपको वाइब्रेशन होगी, आवाज आएंगी। करेक्ट, हाँ, क्योंकि ये हल्का सा। हाँ अभी और- बस। और गियर तो उसका है क्योंकि मे बी एडवेंचर बाइक है इसलिए होता होगा। सो जस्ट टू लेट यू ऑल नो, ये इनकी सेकंड बाइक है। इससे इनका पहले भी मेरी थी, एग्जैक्टली, और सेम बाइक थी। सेम बाइक थी, सेम बाइक। तो वो अपने 5 साल चलाया। 5 साल। सो या दिस इज द सेकंड बाइक, द सेम बाइक।
बट जो आपकी फर्स्ट बाइक थी वो आप बोल रहे हो ज्यादा बेटर थी, राइट? वो ज्यादा बेटर लगी मुझे। एक तो उसमें एक फंक्शन था ABS ऑन ऑफ का, करेक्ट, हाँ। और उसमें इतनी वाइब्रेशन, उसमें मैंने ज्यादा एसेसरीज लगाए थे, ओके, लेकिन इतना वाइब्रेशन मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन स्मूथ ये ज्यादा है। अच्छा, ओके, सो इंजन ज्यादा है? इसका बेटर है, यस यस यस, बहुत बेटर। करेक्ट। सो या सर, थैंक यू सो मच, Thank you so बहुत much. अच्छा लगा, Thank you so much. एंड इट्स अ गुड बाइक, इट्स अ गुड बाइक। सो इफ यू हैव द मनी, आपको चाहिए ब्रांड वैल्यू, यू वांट क्वालिटी, देन दिस इज व्हाट यू शुड गो फॉर। तो अगर आपके लिए ब्रांड वैल्यू मायने रखता है, इफ़ यू वांट गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा कंफर्ट, then this is the bike you should go for, provided you are able to shell the money. But if you are looking for something more reasonable, at the same time something more reliable, smoother engine, then my pick would be the V-Storm. Chalo, bye.